Yes, good afternoon everyone. Open your book. Chapter 1, Nationalism in Europe. हाँ जी वंशिका बेटा, तेजेश्वर, वीडियो ऑन. Yes. बेटा. Good afternoon, ma'am. Ma'am, we have to do. We have done the question of. No, actually, your voice was cracking. Can you repeat? Now we will read from page number 5, last paragraph. Very much. Now you will start reading, beta. Page number 5, last paragraph. When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin camps. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in 1790s. With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. Now, Nupur has started reading last paragraph. Can you see the passage on the screen ना? इस passage के ऊपर एक क्वेश्चन लिखो, बुक के ऊपर, not on copy. बुक के ऊपर यहीं पर क्वेश्चन लिखो. What was Jacobin Club? Not on copy. What was Jacobin Club? Explain its activities. What was Jacobin Club? Explain its activities. You will write down today's date. Now I am also going to write the same question on board. Can you see this? I have written date 27 March. Question number. Today we are going to the first question. And question is, what was Jacobin Club? Explain its activities. Explain its activities. And this question will carry 3 marks. Okay. And have you written this question, please? Show me thumbs up if you have done this question. Written. Only question. Thank you, Nupur. Thank you, beta. Thank you, Vani. Vansh. Vanshika, thank you, beta. Abhishek, Shantanu Dogra. Shantanu Dogra, last warning, otherwise I will remove you. Yes. Now answer will start from this paragraph last. From here you will make 3 points. First of all, when the news up to class. I'm going to write over here. When the news, first point, up to class. Second, their activities. Hint लिख रहे हो सर, will not have your copy. Their activities up to 1790. Last point here. Without jail. Abroad. This much only. I hope not done. Please note it down. Thank you, Nupur. Just mark. Thank you. Nikhil, Adarsh, Tejal, Reva, Sara, Vansh, Aditya, Abhishek. Thank you very much. Thank you so much. Now I am going to clear this answer to you. Acha, have you heard this name ever before?
जैकोबिन का नाम पहले कभी सुना था? अनम्यूट करती हूँ मैं। गुड आफ्टरनून मैम। जैकोबिन का नाम हमने सुना पहले कभी? यस मैम। इन विच ग्रेड? I'm ninth. Who was the leader of Jacobin? मैम रॉबिस्ट पर ऐसा कुछ नाम था। Which kind of people were included in it? कोई आइडिया है कैसे लोग शामिल होते थे? मैम common people were joining these groups to gain a revolution of freedom from monarchy. Okay. Reva, unmute yourself, beta. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Which kind of people were included in Jacobin? Ma'am, the lawyers, doctors, and people of third estate were included in this. Right. So those people who were educated, they were included in Jacobin club. Now I am going to clear 3 points to you. Now listen carefully. When the news of events in France reached the different cities in Europe, जैसे जैसे जो फ्रांस में हो रहा था ना, whatever the things were happening in France, जो हमने ऊपर से पढ़ा है, ये सारा कुछ मतलब न्यू फ्रेंच फ्लैग, विम्स कंपोज, मार्केस को कमेमोरेट किया गया, ठीक है, लोगों को लिबरलाइजेशन के बारे में बताया, सारी चीजें बाकी व्हेन द न्यूज, ये वाली जो न्यूज है वो यूरोप के बाकी शहरों तक पहुंची, देन व्हाट हैपेंड? अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगन टू स्टार्टिंग जैकोबिन क्लब। दे मेड देयर ऑन सीक्रेट क्लब्स, सिर्फ पढ़े लिखे लोग। Second point, their activities prepared by the way for the French armies to move in Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy. चारों शहर में रास्ता बना दिया फ्रेंच आर्मीज का कि आओ हमारे पास, because you have understood the thing that every kind of work, every kind of activities started in France. तो ये चारों कंट्रीज जो थे, स्विट्जरलैंड और हॉलैंड और ये सब इटली वगैरह, इन्होंने रास्ता बना दिया कि फ्रेंच आर्मी को कि आओ हमारे साथ। ये पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे लोगों को जिसमें फायदा लगता है लिबरलिज्म लाने में, लिबर्टी लाने में, सो दे अट्रैक्ट देम। This is the second point you will write. Now third point, with the outbreak of revolutionary wars, जैसे जैसे लड़ाइयां होती गई फ्रांस में, the French armies began to carry the idea of nationalism in abroad. Abroad में भी सारा का सारा nationalism का idea फैल गया, not in France only, even out of the France in Europe also. So these kinds of club they played a huge role for the nationalism, for spreading the nationalism in Europe. You will directly learn this question from book. You will not write this question on copy. Right. Now next page. Napoleonic Civil Code. अब सबसे पहले मेरे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ये थोड़ी सी जगह दिख रही है स्क्रीन पे, देखो मेरी बुक पे। शांतनु थोड़ा ठीक होके बैठ, कैमरा ठीक, तेरा फेस नहीं नजर आ रहा शांतनु, फैन नजर आ रहा मुझे। हाँ, तो यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे आप? निखिल बता तू क्या लिखेगा, मैं क्या बोलने वाली? मैम क्वेश्चन तो मैं बोलूंगी, बट क्वेश्चन से पहले एक चीज लिखो, यहाँ पर लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। ये मैं कभी नहीं कहती हूँ, बहुत कम कहती हूँ। नाउ स्टार्ट राइटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स एंड दिस क्वेश्चन वी विल राइट इन कॉपी ऑल्सो। कल संडे है, आपका होमवर्क यही रहेगा, लर्न प्लस राइट। ओके, आज पढ़ेंगे, मार्क करवा देते हैं। अब जरा बिल्कुल सीधे होके बैठ जाओ, ठीक है? शांतनु फैन तेरा दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा कैमरा ठीक कर। तेजेश्वर, अनम्यूट योरसेल्फ। तेजेश्वर, नेपोलियन का नाम सुना तुमने? यस मैम। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। चलो इसको हम रहने देते हैं। वाणी, अनम्यूट योरसेल्फ। Have you ever heard the name of Napoleon? Good afternoon. नेपोलियन का नाम सुना तुमने? ठीक है।
Which kind of leader he was, good or bad? First of all, he acted as a very good leader among the people, but afterwards, when he got that position, then he just changed himself. He became the cruel leader. ठीक है, चलो, moral of the good story is Napoleon was a good and efficient leader. सिर्फ सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज बिठाओ, नेपोलियन बहुत अच्छा बंदा था, ठीक है। अब जो उसने काम करे वो और भी अच्छे थे। Even some of the works were very good that out of the France भी उसने करे, and one or two works were very efficient that after his death those work implemented. सारे के सारे काम अंडू हो गए थे, बट एक दो काम नेपोलियन के ऐसे थे जो उसके बाद भी रहे। तो इट मीन्स नेपोलियन वॉज अ वंडरफुल एंड एफिशिएंट लीडर। प्लेटफॉर्म क्लियर, हेडिंग क्लियर, हमने पढ़ना क्या है, किसके बारे में, देन वी विल स्टार्ट। शो मी थम्स अप इफ प्लेटफॉर्म इज क्लियर टू यू। थैंक यू नूपुर, थैंक यू अरहान, रुद्रा, वंशिका, आदर्श, निखिल, थैंक यू वेरी मच, अमन, तेजेश्वर, शांतनु, अभिषेक, समीक्षा, थैंक यू वेरी मच, आदित्य, सारा। आप ध्यान से सुनो, क्वेश्चन वाइंड अप अभी नहीं करेंगे, नहीं तो आप फिर मार्क करने में लग जाते हो। पहले अच्छे से ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर नहीं भी वाइंड अप हुआ तो ना सही, बट क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ठीक है। स्टिल नाउ वी आर हैविंग 15 मिनट्स, 15 मिनट में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ओके। चल सारा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, स्टार्ट रीडिंग। आप यू विल स्टॉप एट एवरी फुल स्टॉप। This is my habit that I clear each line and each word to you. ठीक है, हर फुल स्टॉप के बाद आप रुकोगे। Yes, बेटा। Within the wide swath. Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. चलो, first line सारा ने पढ़ी, thank you very much that you have stopped after full stop. Now she has read line that Napoleon, within the wide swath of territory under his control, Napoleon introduced many kind of reforms that already introduced in France. जो उसने फ्रांस में इंट्रोड्यूस करे थे, now he is going to introduce those kind of reforms in other parts of Europe. अब फ्रांस के बाहर भी जाने लगी है, ठीक है। चलो, हाँ जी, सारा कंटिन्यू बेटा। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. Yes, beta, highlight this line. Full line highlight. Full line. Underline or highlight. Now, Sarah has read this line कि Napoleon ने no doubt democracy destroy कर दी। अब देखो, अब you people of grade 10, you know that democracy is the best form of government because we have done in grade 7, grade 8, grade 9, और आज हमारे कंट्री में भी डेमोक्रेसी है। So while living in a democratic form of government, democratic country, we believe that democracy is the best form of government. लेकिन मैं कह रही हूँ नेपोलियन अच्छा था, और उधर से सारा ने पढ़ दिया कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी। Both are the things correct. Napoleon destroyed democracy. But in spite of destroying democracy, he set wonderful administration work. उसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम इतना बढ़िया था कि जितना डेमोक्रेसी का भी नहीं था। उसको पता क्या लगता था, उसको लगता था कि डेमोक्रेसी मतलब पावर टू पीपल। तो लोग बेवकूफ है, सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, सब लोगों की बात क्यों माने, वो ये मानता था। क्योंकि बात सिर्फ उन्हीं की माननी चाहिए जो एजुकेटेड है, जो एफिशिएंट है, जो इंटेलिजेंट है। वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता था। वो कहता था कि 18 साल का बच्चा भी वोट दे रहा है और 40 साल का बच्चा भी वोट दे रहा है। 18 साल के बंदे की दिमाग की सोचने की पावर और है, 40 साल के बंदे की पावर और है सोचने की, ठीक है। नाउ यू पीपल आर गेटिंग राइट आफ्टर 2-3 years वोटिंग राइट, ठीक है। आप जब वोट डालोगे आप पढ़े लिखे बच्चों की तरह सोचोगे, बट द वैल्यू ऑफ a रिक्शा वाला or the value of a street hawker votes value will be same. अब एक अनपढ़ बंदे की वोट की वैल्यू और आपके वोट की वैल्यू सेम है। तो नेपोलियन इसमें बिलीव नहीं करता था, बिकॉज यू विल एजुकेटेड पीपल विल कास्ट देयर वोट व्हेन
आफ्टर जजिंग द क्राइटेरिया ऑफ द कैंडिडेट। अब मैं अपनी वोट पता कैसे देती हूँ, अभी पीछे हुए ना इलेक्शन 2-3 महीने पहले, I check the reputation of the candidate, then I check the qualification of the candidate, then I check the property and background of the candidate, then I check affidavit, जो उसने फाइल किया, लोगों को बताया कि कहीं उस पर पहले से कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, ठीक है। then I check the image of the candidate। ये 5 चीजें चेक करने के बाद मैं अपनी वोट दूंगी, ठीक है। बट जो लोग दूसरे हैं, अनपढ़ लोग हैं, अनएजुकेटेड पीपल हैं, दे विल कास्ट देयर वोट, किसी भी लालच में आके अपनी वोट दे देंगे। सो नेपोलियन नेवर बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी, ठीक है। उसने डेमोक्रेसी को खत्म करके अपने हिसाब से सिस्टम चलाए, बट द सिस्टम्स वर वंडरफुल एंड द सिस्टम ही इंट्रोड्यूस्ड, दैट सिस्टम इज नोन एज Napoleonic Civil Code in 1804। You will not write anything, don't write anything on book or copy, सिर्फ मुझे सुनो, जब लिखने को बोलूंगी तब लिखना, okay। So this is known as Napoleonic Civil Code 1804। He introduced reforms in France and in other parts of the country also। चल, now सारा continue बेटा, full stop पे गुजारा। The Civil Code of 1804, usually known as Napoleonic Code, did away all privileges based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. This was a wonderful work done by Napoleon। अब सारा ने पढ़ा, he did away all the privileges based on birth। जिनको बर्थ के आधार पर फैसिलिटीज मिल जाती थी ना, अगर राजा का बेटा है तो इसको ये राइट मिल गए, और राजा का भतीजा है तो इसको ये राइट मिल गई, इसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ग्रेड 9 में पढ़ के आए हो आप, फ्री स्टेट पीपल, तो वो सब के सब उसने हटा दिए। नाउ राइट टू इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल, एंड ही इंट्रोड्यूस राइट टू प्रॉपर्टी। आपको पता हमारे पास भी पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, यू नो, इंडिया के पास भी पहले राइट टू प्रॉपर्टी था। वी वर हैविंग 7 फंडामेंटल राइट्स, but after that right to property was deleted and now we are having 6 fundamental rights। अब नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी सबको दे दिया, मतलब जो जितना मर्जी काम करे, जितना मर्जी पैसा बनाए, जितना मर्जी अमीर हो जाए, ये नेपोलियन ने बोला, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों बोला? अगर नेपोलियन ने कहा मैं जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरी सैलरी ज्यादा हो जाएगी, या मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मैं और पैसा बाहर से ट्रेड करूंगी और पैसा आएगा तो मैं अमीर हो जाऊंगी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब मेरी पॉकेट में बेनिफिट जाएगा, तो इससे नेपोलियन को क्या फायदा होने वाला था? कैन एनीवन मेक एनी गेस? इससे नेपोलियन को क्या फायदा होना था? वंशिका अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मेरे ख्याल से नेपोलियन को ये फायदा होगा कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो और मेहनत से काम करेंगे, तो वो इंटरेस्ट लेंगे काम में, फिर उनको देखकर और भी लोग इंस्पायर होंगे, वो भी करेंगे, तो उस वजह से उसका फायदा ये होगा कि जो जिस कंट्री में उसने जिसका जो उसका वो सच हो जाएगा, मतलब कि कंट्री को डेवलप बनाने का। ठीक है, चलो ये मान गए हम। अब हम अनम्यूट करिए बेटा, नेपोलियन को क्या फायदा होना था जब लोग मेहनत कर रहे हैं? तो मैम वो लोग मेहनत करते तो वो प्रॉपर्टी खरीदते, प्रॉपर्टी प्राइवेट होती, प्राइवेट प्रॉपर्टी से उसको टैक्स देना था, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना। ठीक है, रुद्रा की बात सुने। रुद्रा बता जरा नेपोलियन। मैम नेपोलियन ये चाहता था वो सारे लोग काम करे, इसलिए उसने राइट टू प्रॉपर्टी रखा था। इस कारण वो लोग पैसा कमाना शुरू हो गए, जितना लोगों के पास ज्यादा पैसा हुआ उतना टैक्स उनके ऊपर इंक्रीज हो गया। चलो थोड़ा तो हम कह सकते हैं, बट एक्चुअली चल नूपुर से भी पूछते हैं। नूपुर तू बता जरा, राइट टू प्रॉपर्टीज का नेपोलियन को क्या फायदा हुआ भाई? मैम अगर लोग ज्यादा काम करेंगे उनकी इनकम ज्यादा होगी, ज्यादा इनकम की वजह से टैक्स ज्यादा आएंगे, जिसके साथ वो अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं कंट्री रीजन, क्योंकि उससे क्या होगा, राइट टू प्रॉपर्टी से लोग और मेहनत करेंगे और पैसा आएगा और देश अमीर हो जाएगा एंड इकोनॉमिक लेवल विल बी बेटर। सो राइट टू प्रॉपर्टी वाज गिवन टू द पीपल। दिस विल बी योर फर्स्ट पॉइंट, पर अभी नहीं बनाना आपने, ठीक है। चलो समीक्षा कंटिन्यू इसके बाद। This code was exported to the regions under France control. ठीक है, एक ही लाइन में कुछ बात नहीं, आगे बढ़ रहा हूँ।
In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, and Germany, Napoleon simplified administrative decisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. अगला काम क्या किया? He simplified the administrative division. उसने डिवीजन बना दी। ये नहीं कि सारा देश मैं ही देखूंगा, उसने डिविजन्स बना दी। ठीक है, अब हमारे स्कूल में भी डिविजन्स बनी हुई है ना, 7th को ये देखेंगे, 8th क्लास को ये टीचर देखेंगे, 9th क्लास के ये कोऑर्डिनेटर है। सो होल द सिस्टम इज इन अ वंडरफुल वे। फाइन, इन द सेम वे नेपोलियन आल्सो सिंप्लीफाइड द डिवीजन। ठीक है, अब उसके बाद किसने पढ़ा? समीक्षा ने abolished feudal system, grade 9 में पढ़ के आए हो आप, feudal system नेपोलियन ने वो डिलीट कर दिया। Then freed peasant from serfdom. Write down the meaning of serfdom. Serfdom means slavery. उसने स्लेवरी को खत्म कर दिया, कोई किसी का नौकर नहीं बनेगा, कोई किसी का सर्वेंट नहीं बनेगा। And freed peasants from manorial dues, जिनके जितने ड्यूज से सारे किसानों को माफ कर दिए। And now he has started the work with a new way. अब उसने नए तरीके से काम करना शुरू किया। ठीक है, चलो तेजल कंटिन्यू। मैम एक्चुअली वो मेरी टैब की बैटरी बस 1% है, ये तो आई थिंक और भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। आदर्श कंटिन्यू बता, उसके बाद पढ़ो। इन द टाउन्स नॉट एबल टू अनम्यूट, चलो कोई बात नहीं है। आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ। Good afternoon, ma'am. In the towns too. In the towns too, gate restrictions were removed. Transport and communication systems were improved. बातें और करी नेपोलियन ने। In the towns, guild restrictions were removed. Write down the meaning of guild. Guild means बेटा trade groups. ओके, अब जितने रिस्ट्रिक्शंस थी ना ट्रेड ग्रुप्स के, सारी की सारी रिमूव कर दी। नाउ ऑल द बिजनेसमैन वर वेरी हैप्पी विद नेपोलियन। अब कोई ट्रेड पर कोई बंदिश नहीं, जितना मर्जी ट्रेड करो, जितना मर्जी प्रॉफिट कमाओ, नो टैक्स, एनी काइंड ऑफ नो कस्टम ड्यूटीज, नो बैरियर्स। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। पहले ट्रांसपोर्टेशन नहीं अच्छा था, कम्युनिकेशन नहीं अच्छा था, नाउ इट वाज इम्प्रूव्ड। दिस इज अ नेक्स्ट वर्क डन बाय नेपोलियन। हाँ जी, तेजेश्वर नहीं, आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट पर peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom. अब नई नई फ्रीडम मिल गई है। अब सारे के सारे लोग बिजनेसमैन खुश है नेपोलियन से कि जितना मर्जी ट्रेड करें। अब वो ट्रेड करेंगे, पैसा तो देश में ही आएगा ना, देन द देश विल बी, द कंट्री विल बी रिच। ओके, चलो नाउ अमन अनम्यूट योरसेल्फ। Businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that from those standardized weight and meters and the common national currency would facilitate the movement of goods and capital from one. Yes, so this was another work done by, this was the most wonderful work done by Napoleon. उसने क्या किया? Now she has read, अमन ने कितना कुछ पढ़ दिया। यूनिफॉर्म लॉज, अब आपने यूनिफॉर्म पहनी है ना, सबकी सेम है, सबकी सेम टाई है, सबकी सेम शर्ट है ना, तो यूनिफॉर्म लॉज बना दिए, एक ही तरह के लॉज सब जगह बन गए। अब ये नहीं कि लॉज विल बी डिफरेंट फॉर द रिचर पीपल एंड लॉज विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फॉर द पुअर पीपल। देन सेकंड थिंग, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजरमेंट। नाउ स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजरमेंट मतलब पहले क्या था, अर्लियर इट वाज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग कि वेट का तरीका और मेजरमेंट का तरीका ना डिफरेंट था सब जगह पर। नाउ ही मेड स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट। नाउ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सुनो, टाइम हो गया पर बराबर सुन लो। लास्ट पॉइंट में कहा कि नाउ द स्टैंडर्डाइज्ड weights and measurement. Now, if 1 meter cloth is equal to 24 inches in Jalandhar,
1 meter cloth is equal to 30 meter in Ludhiana. 1 meter cloth is equal to 44 inches in Amritsar. So see, and even the currency was different. Here, the currency's value was different 5 paisa than in Jalandhar or in Amritsar. So now the measurement भी different हो गया, currency की value भी different हो गई, तो कितनी दिक्कत आती थी। अब मेरे जैसा कोई रिटर्न जैसा होता तो वैसे कंफ्यूज हो जाता इतनी कैलकुलेशन में, तो मैं तो कहती मैंने ट्रेड नहीं करना, तो ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर वहीं बैठे रहेंगे, देश कैसे अमीर होगा, पैसा कैसे आएगा। सो द थिंग व्हाट ही डिड, ही मेड यूनिफॉर्म लॉज। सिर्फ एक तरह के कानून सारे फ्रांस में होंगे, यूनिफॉर्म लॉज बनेंगे, सबके लिए बराबर लॉज बनेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजरमेंट होगा, जो मेजरमेंट यहाँ पर है वही मेजरमेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री होगा। Now I have given you example Jalandhar Amritsar, but you will not write Jalandhar Amritsar. Here the names are given Luxembourg, Nuremberg, that we will do tomorrow. Now question finish. Okay, we will not write, we will not wind up, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, we will write tomorrow. Okay, now show me thumbs up if question clear. Napoleon one. Okay, thank you Nupur, Vanshika, Adarsh, Sara, Samiksha, thank you my dear, thank you Raham, Aditya, Reva, Tejeshwar, Abhishek. चलो, Nupur, unmute yourself. Yes, ma'am. Nupur, आप कहाँ बैठे हो? You are sitting at home? Yes, ma'am. Still you are wearing mask? समझ नहीं आई? Ma'am, I'm suffering from cold. अच्छा ठीक है, good girl, good girl. Cold. This is the difference between the educated and uneducated people, है ना? चलो, good girl. चलो, thank you very much. We will not write this question. Only and only learn all the pages which we have done till now. सिर्फ रिवाइज करना, लिखना कुछ नहीं लिखाऊंगी मैं अपने सामने क्लास में. Okay. चलो, thank you. I'm going to end up the class. Thank you very much for joining. God bless you, beta.